Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on education and the training program. So today we will discuss about the external teaching program. For my previous videos on internal teaching program, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the external teaching programs. So basically external teaching programs are considered to be those programs in which the hospital pharmacist act as a guest lecturer or a speaker or possibly the sole instructor in charge of a specific course in a school or the colleges. तो जितने भी एक्सटर्नल टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो फार्मासिस्ट रहता है बेसिकली एज अ गेस्ट लेक्चरर या स्पीकर या सोल इंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट करता है. So most of the chief pharmacists in university affiliated teaching hospital get appointed as a faculty of any associated college of pharmacy. So in such college, hospital pharmacists may teach courses other than hospital pharmacy. So these courses may include the product development, preparation of the parental product, different sterilization techniques and the pharmacology of different drug. So जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं बेसिकली तो जो भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ रहती है तो वहाँ पर एज ए फैकल्टी के अपॉइंट होते हैं और उसमें केवल हॉस्पिटल फार्मेसी से ही रिलेटेड कोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जाते बल्कि वो लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक और फार्माकोलॉजी ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. देन participation in various seminars as well as the refresher program in the various institute is another way in which the hospital pharmacist may carry one teaching program. So जो भी hospital pharmacist रहता है वो refresher program में भी take part करता है. तो एक तरीके से ये another way है जिसके थ्रू वो teaching program provide कर सकता है, carry कर सकता है. So pharmacist also participated in the activities of like the nursing activity में participate करता है, dietary activity में, oxygen therapist के साथ में काम करता है, medical technologist के साथ में काम करता है, then does help to improve the personal knowledge of the hospital pharmacist. तो ये सारी चीज़ों में अगर वो help करता है तो इससे basically देखा जाता है कि hospital pharmacist का ही knowledge बढ़ता है. So some hospital pharmacists have been sufficiently progressive to obtain the various grants in aid to support the research in drug distribution techniques or in studying the prescribing habits of the physician associated with the large hospital clinic. तो कुछ जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो एक तरीके से बहुत सारी जो भी रिसर्च ग्रांट्स वगैरह रहती है उनमें सपोर्ट करते हैं और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टेक्निक्स इन स्टडिंग द प्रिस्क्राइब हैबिट ऑफ द फिजिशियन एसोसिएटेड द लार्ज हॉस्पिटल क्लिनिक. तो क्लिनिक वगैरह में भी हेल्प करना प्लस रिसर्च वगैरह में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है. Then this kind of the basic study when completed and published so serves as a teaching material for it is in this way that will help other pharmacists to improve their services in their institution. तो जब ये रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह हो जाते हैं और जब ये पब्लिश हो जाते हैं तो दूसरे जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं तो उनके लिए एक तरीके से टीचिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है और उनको प्रॉपर जो सर्विसेज रहती है एज ए इंस्ट्रक्टर तो उनको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. देन जो डिफरेंट सर्विसेज होती है जो कि नर्सिंग होम या क्लिनिक्स वगैरह में दी जाती है तो दीज आर सबसे पहले अपन क्लिनिक की बात करते हैं. तो क्लिनिक एक तरीके से ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर कि आउट पेशेंट जो रहते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है. तो प्रॉपर उनका चेकअप होता है, उनकी हेल्थ रिलेटेड उनको एडवाइस दी जाती है. तो क्लिनिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है क्लिनिन जिसका मतलब होता है स्लोप, लीन और रिक्लाइन. सो जो भी आउट पेशेंट रहता है मीन्स दे गो टू द क्लिनिक फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और द थेरेपी एंड देन लीव without staying all night. So it is a kind of a hospital department where a doctor visit to talk to people about their particular health matter. So the patient discuss their problem with the doctor and the doctor may prescribe them medicines. So a clinic is usually run for about 4 to 5 hours a day. तो जितने भी आउट पेशेंट होते हैं तो वो आउट पेशेंट क्या करते हैं कि आपका जितना भी क्लिनिकल डायग्नोसिस वगैरह होता है, ट्रीटमेंट और द थेरेपी प्रोवाइड करता है विदाउट स्टेइंग ऑल नाइट. तो पूरे नाइट वहाँ पर नहीं रहता है. हॉस्पिटल डिपार्टमेंट इट इज़ अ काइंड ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पर कि डॉक्टर जो रहते हैं वो विजिट करते हैं, टॉक करते हैं पेशेंट को और पेशेंट को क्या मेडिकेशन हेल्थ वगैरह कैसी है उनकी तो पर्टिकुलर हेल्थ मैटर पर एडवाइस करते हैं. सो ये जो क्लिनिक रहते हैं वो ओपन रहते हैं 4 to 5 hours a day.
और क्लिनिक्स आर फ्रिक्वेंटली लिंक्ड विद द जनरल मेडिकल प्रैक्टिस रन बाय वन और सेवरल जनरल प्रैक्टिशनर। तो जो क्लिनिक रहती है वो फ्रिक्वेंटली लिंक्ड रहती है जनरल मेडिकल प्रैक्टिस की तरह और रन होती है फॉर द सेवरल जनरल प्रैक्टिशनर। फिर अगर नर्सिंग होम्स की बात की जाए तो बेसिकली नर्सिंग होम इज़ अ प्लेस जहाँ पर कि पीपल हु डोंट नीड टू बी इन अ हॉस्पिटल बट कैन बी केयर्ड एट द होम। तो ऐसे पर्सन जो कि होम पे जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है तो उनको प्रॉपर केयर चाहिए रहती है तो उनको वहाँ एडमिट किया जाता है नर्सिंग होम्स में। सो बेसिकली एक स्मॉल क्लासिफाइड हाउस की तरह होता है जहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है उन पेशेंट को विथ द प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट स्पेशली फॉर द एल्डरली सिटीजन। सो नर्सिंग होम्स स्पेशलाइज इन लॉन्ग टर्म केयर। सो नर्सिंग होम इज़ ऑल्सो नोन एज द कन्वर्सेंट होम या स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी जिसको SNF बोलते हैं। केयर होम्स, रेस्ट होम्स और इंटरमीडिएट केयर बोला जाता है नर्सिंग होम्स को। जो स्टाफ वहाँ पर रहता है जो भी मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है तो वो फिज़िकल स्पीच एंड द ऑक्यूपेशनल थेरेपी लाइक अ हॉस्पिटल पूरा उनको प्रोवाइड किया जाता है। So they try to have a neighborhood feel. The special care unit is also served for the people with serious memory problems such as Alzheimer disease. So it is not just for particular people but it is for anyone who requires a special treatment for 24/7. तो बेसिकली जो नर्सिंग होम होते हैं ऐसा नहीं है कि जिनकी मेमोरी का प्रॉब्लम है, सीरियस मेमोरी प्रॉब्लम है या अल्जाइमर्स डिसीज़ वगैरह उनके लिए ही होगा, बल्कि ऐसे पेशेंट के लिए भी रहता है वो जिनको 24/7 ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए नर्सिंग होम्स खोले जाते हैं जिनका कोई भी नहीं होता आगे पीछे या जो बहुत एल्डरली पेशेंट हैं जो खुद को संभाल नहीं सकते, खुद का मेडिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको नर्सिंग होम में एडमिट किया जाता है। सो बेसिक डिफरेंस यू कैन सी ऑफ द नर्सिंग होम एंड द क्लिनिक। सो द डिस्क्रिप्शन इज लाइक nursing home is a private resident institute equipped to care for the person unable to look after themselves as the age और क्रोनिकली इल। तो अगर वो एज पेशेंट या क्रोनिकली इल है तो अपना ध्यान नहीं रख पाता है, इसलिए वेल इक्विप्ड आपको एक रूम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि पेशेंट को रखा जाता है। और क्लिनिक को वैसे देखा जाए तो इट इज़ अ प्लेस और एज इन कनेक्शन विद द मेडिकल स्कूल और द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट पेशेंट समटाइम्स एट लो कॉस्ट और विदाउट चार्ज। तो क्लिनिक जो रहते हैं विदाउट चार्ज या लो कॉस्ट पे भी आपको जो भी नॉन रेसिडेंट पेशेंट वगैरह हैं तो हमेशा जो क्लिनिक रहते हैं वो आपके देखा जाता है। तो अधिकतर मेडिकल स्कूल या जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं तो वहाँ पर रहता है उसके आसपास, तो वो लो कॉस्ट में या विदाउट चार्ज आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ओरिजिन जो है आपका नर्सिंग होम का दैट इज़ फ्रॉम द 1896 टू 1900। और क्लिनिक जो है ग्रीक वर्ड क्लीन मीनिंग टू स्लोप और लीन और डिक्लाइन। और जो टाइप होता है तो इन द US देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्सिंग फैसिलिटीज़ दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट केयर फैसिलिटी जिसको ICF बोलते हैं। इट इज़ फॉर द इंडिविजुअल हु डिसेबल्ड और जो एल्डरली होते हैं उनको अपन इंटरमीडिएट केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट होता है दैट इज़ द असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी दैट इज स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी। दैन जो क्लिनिक्स होते हैं दे आर लाइक रिटेल बेस्ड क्लिनिक हो सकते हैं, फ्री क्लिनिक हो सकते हैं, जनरल आउट पेशेंट क्लिनिक होते हैं जिसमें कि सेक्शुअल हेल्थ क्लिनिक, फर्टिलिटी क्लिनिक, एबॉर्शन क्लिनिक या एम्बुलेटरी सर्जरी क्लिनिक, स्पेशलिस्ट क्लिनिक जो रहते हैं तो उस टाइप के क्लिनिक्स वगैरह होते हैं। दैन अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जो नर्सिंग होम होते हैं वहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता है और क्लिनिक में भी कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता है। फिर आवर्स की बात की जाए तो जो नर्सिंग होम्स रहते हैं वो 24/7 वर्क करते हैं और जो क्लिनिक रहते हैं वो यूजुअली 4 to 5 आवर्स अ डे वर्क करता है। और रूम्स की बात की जाए तो नर्सिंग होम में डिफरेंट सेपरेट रूम होते हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है। और क्लिनिक्स की बात की जाए तो उनमें रूम्स वगैरह नहीं होते हैं। और बेड्स की अगर बात की जाए तो नर्सिंग होम में सभी पेशेंट का सेपरेट बेड होता है। क्लिनिक की बात की जाए तो वहाँ पर कोई भी बेड नहीं होता है। और डेथ की अगर बात की जाए तो यूजुअली नर्सिंग होम में जो पेशेंट जाता है एल्डरली पेशेंट तो उसकी डेथ होती है उसके बाद ही बाहर निकलता है। और क्लिनिक में डेथ यूजुअली डू नॉट टेक प्लेस इन द क्लिनिक। एमरजेंसी किट की बात की जाए तो क्लिनिक यूजुअली डू हैव द एमरजेंसी किट और क्लिनिक्स यूजुअली डू नॉट हैव द एमरजेंसी किट in the clinic. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.